Good morning, everyone. How are you all? Good Good morning, morning. sir. I Good am morning, fine. What sir. about you? Good morning, sir. We are fine. What about you? I'm also fine, thank you. Beta, today we have to start a new section, that is the grammar station from the chapter number 9. So let us open the book first, then we would, so that we can discuss and complete the exercise of that section too. Also, you all need to open the book. There's a noise from Anupriya. Anupriya, please, can you please unmute yourself? Yes. But whenever you are required to speak, just then only you need to unmute your mic. Otherwise, you should keeping your mic. You should be keeping your mic on the mute mode. Acha, before starting the grammar station, I would like to confirm that whether is there anything, any question, any query from the previous section of this chapter. No, sir. Already we have done the comprehension junction from book C. Sir. बुक सी का कॉम्प्रिहेंशन जंक्शन हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. Yes, sir. ऑल द क्वेश्चन एवरीबॉडी हैव रिटन. Yes, sir. बेटा, in the grammar station we have to talk about the future. The future is the topic what already we have discussed in the grammar junction section. Grammar junction वाले section में future के लिए कैसे बातें करना है, how we can speak about the future already we have discussed. डिस्कस किया है या नहीं? Sir, किया गया है. One of the students has to tell, only one student has to tell that ki what we discussed, how we can talk about the future. I have told you the way, many ways. You all have to tell about that ki how many situations would be there, yeah, or how would be talking about the future. Can anyone please repeat जो कुछ भी आपने सीखा है? Yes, Anupriya, please speak about that how we can speak about the future. Sir, when we have to plan something, we use going to, and when we prediction, then we use might, and an action in near future. When action in near future, we use about to. And a routine or repeated action over a length of time in future, we will be traveling an action that will be happened at a particular time in the future. We use will be traveling. Stop. Beta, your voice is not very clearly, actually it is not audible very clearly. So what I am doing, before moving grammar station, just I want to you all to look into the rules, whatever we have discussed in the grammar junction. So बहुत ही जल्दी से एक बार रिकैप कर लेते हैं. We can use the going to phrases. We can say going to is a kind of phrase. It's not a modal verb. Going to हो गया, about to हो गया. So these are the phrases that can be used to talk about the future. To talk about the future. Future में बातें करने के लिए आपको 3 तरीके हैं. आपको मैंने एक टेंस सिखाया था. टेंस में आपको प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, या आपका फ्यूचर इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया. टेंस के बारे में आप लोगों को सिखाया गया है या नहीं? अलग से क्लास की जरूरत है या फिर आप लोगों ने ऑलरेडी टेंस के बारे में पढ़ा होगा? फिलहाल अगर रिक्वायरमेंट होगी देन आई विल टेक द अनदर क्लास फॉर द फ्यूचर फॉर द टेंसेस वेयर आई विल बी कवरिंग ऑल काइंड ऑफ टेंसेस. ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. So what we are having the different ways to talk about the future. Future यानी भविष्य के बारे में बात करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं. कुछ कहीं पे हम मॉडल वर्ब विल का यूज करते हैं और कहीं पे हम फ्रेजेस जैसे गोइंग टू या अबाउट टू जैसे फ्रेजेस का यूज करते हैं. अब गोइंग टू या अबाउट टू का यूज कब करेंगे? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन अवर ग्रामर जंक्शन. तो उसी को हमें एक बार रिकैप करना है. देन आई वुड बी मूविंग ऑन द ग्रामर स्टेशन टॉक सेक्शन. Whenever we are having any plan, let's say कि जो कोई प्लान आपने ऑलरेडी बना दिया है और आप उसी को तुरंत जा रहे हैं करने,
आप ये बताने जा रहे हैं कि मतलब ये आपका प्लान में कोई शेड्यूल हो और उसको आप नेक्स्ट वीक में करने जा रहे हैं या नेक्स्ट मंथ में करने जा रहे हैं, आपको ये बताना है, और इट इज अ पार्ट ऑफ योर प्लान, देन यू कैन यूज द गोइंग टू फ्रेजेस टू टॉक अबाउट योर फ्यूचर दैट फ्यूचर प्लान. ओके, Yes, sir. लेट्स से you are मतलब फिजिकली यू आर रेडी टू डू एनी ऑफ द टास्क. अभी आप कंटिन्यूसली अभी बैठे हैं और तुरंत का तुरंत कोई काम करने जाने ही वाले हैं, यानी शुरू बस आपने पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ चुके हैं, बट आपने बस शुरू भर नहीं किया है. एक्शन मोड में आने मतलब आप प्लान नहीं कर रहे हैं, आप सोच नहीं रहे हैं. ऑलरेडी यू हैव स्टार्टेड, बट एक्शन मोड में आप आ चुके हैं, बट यू हैव नॉट स्टार्टेड. यानी आप पूरी तरीके से रेडी हैं, बस करने ही जाने वाले हैं. देयर यू कैन यूज द अबाउट टू फ्रेज. ये अबाउट टू फ्रेज आप यूज कर सकते हैं टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. अभी तक क्या हम लोगों ने पढ़ा था पिछली क्लासेस तक कि फ्यूचर के लिए बात करने के लिए फ्यूचर टेंसेस का यूज करेंगे, बट फ्यूचर टेंसेस के अलावा और भी कुछ ऑप्शन है, गोइंग टू और अबाउट टू. देयर इज अ कपल ऑफ फ्रेजेस दैट कैन आल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट द फ्यूचर. ध्यान रहेगा ये बातें. Yes, sir. Yes, sir. माइट का भी यूज कर सकते हैं. अब विल बी ट्रेवलिंग आपको अच्छा फ्यूचर टेंस के बारे में आपको इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में सिखाया गया था. आपको पता है इन चारों के बारे में डिफरेंस, चारों में डिफरेंस पता है या नहीं? हाउ मेनी नो द डिफरेंस बिटवीन द फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस? इन चारों टेंसेस के बारे के बीच में डिफरेंसेस कितने लोगों को पता है? शो मी योर हैंड, रेज योर हैंड. नहीं पता होगा देन I'll speak you all in detail, don't worry. अगर नहीं पता है कोई बात नहीं. अच्छा, कितने लोगों को नहीं पता है प्रॉपरली डिफरेंस? कितने लोगों को नहीं पता है? शो मी योर हैंड. हाउ मेनी डज नॉट नो द डिफरेंस? ओके, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स. अभी आप लोग को टेंसेस पढ़ाया जाना बाकी है. दैट मीन्स कि हमें अलग से आपकी बुक से हट के जाकर के टेंसेस को सिखाना पड़ेगा. ओके, कोई बात नहीं. आई वुड लाइक टू मतलब एक तरीके से मुझे खुशी होगी आप लोग को टेंसेस पढ़ाने में, दोबारा पढ़ाने में, क्योंकि टेंसेस जो टेंस है ये कहीं ना कहीं बेस होता है आपका. अगर एक्टिव पैसिव आप सीखने वाले हैं, नरेशन करना डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखेंगे, तो देर हमेशा आपको टेंसेस की ही जरूरत पड़ेगी. तो बिना टेंस के हेल्प के आप नहीं कर पाएंगे. तो टेंसेस को अगर दोबारा अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो एक बार दोबारा बताएंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. इट वुड बी इजी फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर टॉपिक्स अगर आपका टेंसेस क्लियर है. फिलहाल अभी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कुछ समझने की. टेंसेस की मैं अलग से एक क्लास लूंगा जहां से मैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक एक करके सारा कवर करने की कोशिश करूंगा. ठीक है? आप लोग को भी स्कूल होने वाले हैं. योर स्कूल, अच्छा आपके स्कूल ओपन वाले हैं, ओपन होने वाले हैं. मान लो ये फ्यूचर की बातें हुआ ना. Yes, sir. तो Yes, व्हाट, sir. हाउ वी कैन स्पीक आवर स्कूल विल बी ओपन होगा. Sir, our school about to open. Our Yes, school sir. is Yes, sir. about to open. School is about. तो आवर स्कूल इज अबाउट टू बी ओपन, यानी हमारा स्कूल क्योंकि ऑलरेडी ये प्लान हो चुका है, बस खुलने ही वाला है, बिल्कुल ओपन हो चुका है. या इज गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम, अगर आप कोई पर्टिकुलर टाइम दे रहे हैं तो आवर स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम 1st of March इन दिस ईयर, इन द नेक्स्ट मंथ. नहीं, अब क्या कह सकते हैं? आवर स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम 1st of March. और अगर मान लीजिए आवर स्कूल इज अबाउट टू ओपन, बस खुलने ही वाला है, आपको डेट या टाइमिंग नहीं क्लियर है, तो आवर स्कूल इज अबाउट टू ओपन, बस खुलने ही वाला है, जल्दी खुलने वाला है. तो इन बोथ द वे यू कैन स्पीक. तो लेट अस मूव ahead in the grammar section. What we have to study, there are many ways to talk about the future. The same thing what we have studied in our grammar junction, the same concept is also here in the grammar station. जैसा हर बार होता है ग्रामर जंक्शन में जो आप पढ़े रहते हैं उसी को ही ग्रामर स्टेशन में रिपीट किया जाता है, जिससे जिन बच्चों को समझ में ना आया हो तो उनका फिर से उनको लर्न करने का एक दोबारा मौका मिल जाए, और जिन बच्चों को पढ़ना आता है, जिन बच्चों ने समझ लिया है, उनको प्रैक्टिस के लिए और भी मौके मिले, सो दैट उनका जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. हाउ मेनी वेज आर देयर टू टॉक अबाउट द फ्यूचर? The most common way to talk about the future is the modal verb.
द मोस्ट कॉमन वे टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इज टू यूज द मॉडल वर्ब विल। विल का यूज करते हुए हम फ्यूचर की बातें बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। जो सबसे कॉमन यूज है, जो जनरली पीपल्स यूज दिस मॉडल वर्ब विल टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। किसके, इज अबाउट टू या अबाउट या इज गोइंग टू या अबाउट टू या विल, सबसे ज्यादा यूज किसका होता है? विल। विल का ही यूज होता है। Sir, will. Without will we can't. होता है। तो इट इज द मोस्ट कॉमन वे, सबसे ज्यादा कॉमन है, कॉमन तरीका है, सामान्य तरीका है। जनरली पीपल्स यूज दिस मॉडल वर्ब टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। बेटा बहुत आवाज आ रही है गाड़ी चलने की, थोड़ा सा वेट करिए। चलिए ठीक है। पीपल्स जनरली यूज विल वर्ड, विल मॉडल वर्ब टू टॉक अबाउट द फ्यूचर। जो सबसे ज्यादा यूज होने वाला है फ्यूचर में के लिए बात करने के लिए, फ्यूचर के बारे में बताने के लिए, दैट इज अ मॉडल वर्ब। इसके अलावा इस मॉडल वर्ब को भी हम 4 तरीके से यूज करते हैं। एक जैसे कि वी विल गो टू द फेयर टुमारो, फॉर एग्जाम्पल वी विल गो टू द फेयर टुमारो, हम कल मेला देखने जाएंगे। हम वी विल गो टू द फेयर टुमारो, कल हम मेला जाएंगे। यानी कल आपका ये प्लान का हिस्सा है, या वी आर गोइंग टू द फेयर टुमारो, ऐसे भी तो आप बोल सकते थे वी आर गोइंग टू द फेयर टुमारो। बट जो मोस्ट कॉमन वे है दैट इज अ विल का ही यूज करते हैं। जब आर गोइंग टू, अबाउट टू का यूज आप तब करेंगे, आर गोइंग टू या गोइंग टू का यूज जो भी फिलहाल कर रहे हैं, आर गोइंग टू या इज गोइंग टू या आई एम गोइंग टू, आप तब यूज करेंगे जब आपका वो कभी प्लान का हिस्सा हो। जैसे कि स्कूल ओपन हो रहा है 1 मार्च को, ये प्लान ऑलरेडी हो चुका है, डेट आ चुका है, कंफर्म है, तो हम क्या बोलेंगे? जहां पे पूरी तरीके से श्योरिटी ना हो तो हम क्या बोलेंगे? ये 100% है कि स्कूल 1 मार्च को खुलेगा, एडवाइजरी भी जारी हो चुकी है, दैट मीन्स कि आवर स्कूल इज गोइंग टू बी ओपन फ्रॉम 1 मार्च। Yes. अनदर थिंग, अब ये विल गो, विल के साथ आपका इंडेफिनिट, यानी जो आपका फ्यूचर में ये बता रहा होगा कि हमारा स्कूल फ्यूचर में ओपन होगा, ठीक है। लेट्स से, लेकिन अगर प्रिडिक्शन की बात किया जाए, अब प्रिडिक्शन की बात किया जाए तो आप लोगों को फिलहाल जिसमें जो बताया गया होगा ग्रामर जंक्शन में, whenever you are going to talk about the prediction के लिए आपको ग्रामर जंक्शन में क्या सिखाया गया था? तो might का use. माइट का यूज आपको बताया गया था। लेकिन माइट के अलावा आप चाहे तो मॉडल वर्ब का भी यूज करते हुए सेम चीजों को बोल सकते हैं। अब विल नॉट बी एबल टू, अब एबल मतलब एक तरीके से योग्य होता है। अगर आप इसकी हिंदी मीनिंग खोजेंगे, एबिलिटी से एबल बना है। ही विल नॉट बी एबल टू टेक द टेस्ट एज ही हैज हाई फीवर। अब यहाँ पे श्योरिटी है, यहाँ पे कंडीशनल नहीं है। ये वहां पे जब माइट का यूज कर रहे थे आप, तो आप कंडीशनल एक तरीके था कि मतलब ये कहीं ना श्योर नहीं था कि वो क्लास मतलब टेस्ट ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं, आप संभावना, he will not be able to take the test as he has high fever. Also we are having the another way to talk about the future. जैसे कोई एक्शन आप करने जा रहे हैं, that is going to be happen, जो कि होने जा रहा हो in the near future, तब हम क्या बोलेंगे? Human will soon be living on the planet. यानी अगर इन फ्यूचर आपका कोई बात होने वाला हो तो वहां पे भी विल का यूज करेंगे। प्रिडिक्शन के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं, फ्यूचर प्लान्स के लिए भी हम विल का यूज कर सकते हैं। आपके ग्रामर सेशन में सिर्फ ये बताने की कोशिश की जा रही है, जो मॉडल वर्ब विल है इसका यूज हम फ्यूचर प्लान के लिए भी कर सकते हैं, प्रिडिक्शन के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी एक्शन जो नियर फ्यूचर में होने जा रहा है, फॉर दैट ऑल्सो वी कैन यूज विल मॉडल वर्ब। और भी कई सारी चीजें इन फ्यूचर, कोई पर्टिकुलर मतलब फ्यूचर में शुरू होकर के किसी पर्टिकुलर टाइम तक वो चलता रहे, वो जारी रहे, तो उसके लिए भी हम विल मॉडल वर्ब यूज कर पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि फ्यूचर में कोई प्लान शुरू हो और वो कंप्लीट भी हो चुका हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस उसको बोलते हैं। तो वहां पे भी आप विल मॉडल वर्ब का यूज करके हम अपनी बातों को रख सकते हैं। अभी विल का यूज आपका इंडेफिनिट में करेंगे, कंटिन्यूअस में करेंगे, परफेक्ट में करेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस में करेंगे। ये टेंस का हिस्सा है। फिर से कोई गाड़ी आ रही है, आवाज काफी तेजी से, ये मिट्टी ढोने वाले लोग इतना तेजी से गाड़ी चलाते हैं, आवाज आ रही। चलिए ठीक है, आप लोग
सुनने का प्रयास करें। फिलहाल कुछ अवरोध हैं गाड़ी को लेकर के, ये डिस्ट्रैक्शन है एक तरीके से। बेटा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। लेट्स से कि कोई आपका फ्यूचर प्लान, कोई आपको प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में कोई चीज होने वाला है कि वह स्कूल जाएगा या वह घर जाएगा, तो ही विल गो टू होम, ही विल गो टू स्कूल, वह खाना खाएगा, ही विल ईट द फूड, ही विल टेक द फूड। आप एज विल का यूज कर दिया आपने, तो ये तो हुआ इंडेफिनिट। लेकिन जब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की, तो कॉन्टिन्यूअस मीन्स क्या होता है? कंटिन्यूअस की हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है बताइए, कोई भी बताइए। सर लगातार, जारी रहना। कोई भी आपका जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो प्रेजेंटली वो कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जारी रहता था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में जब पढ़ा होगा, तो जब हम ऐसे एक्शन की बातें कर रहे हैं जो पास्ट, मतलब पास्ट में ही वो कंटिन्यूटली उसमें कंटिन्यूटी बनी हुई थी, यानी पास्ट में वो जारी रह रहा था, तो उस एक्शन के बारे में हम बताते थे। इन द सेम वे फॉर द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हम एक ऐसे एक्शन की बात करेंगे जो फ्यूचर में जिसकी कंटिन्यूटी दिखे। जैसे कि मुझे अगर कहना है कि कल मैं लखनऊ जा रहा होऊंगा, यानी उस समय में आज के समय मतलब एट दिस टाइम, अभी मैं इस समय पढ़ा रहा हूं, लेट्स से कि टुमारो आई विल बी गोइंग टू द दिल्ली, आई विल बी ट्रैवलिंग फॉर दिल्ली, मैं इस समय ट्रैवलिंग कर रहा हूँगा दिल्ली के लिए। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कि ये बता रहा है कि हाँ फ्यूचर में ये काम, ये जो एक्शन है यहाँ पे, वो एक्शन की कंटिन्यूटी वहां पे शो होगा, तो दैट वुड बी द कंसिडर्ड एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इंडेफिनिट के लिए विल के बाद आप एक सिंपल वर्ब की बेस फॉर्म यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस के लिए आपका विल के बाद हमेशा एक चीजें और आपको ध्यान रखना है, जो विल आपका वर्ड होता है, विल जो ये आपका मॉडल वर्ब होता है, इसके बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। अब चाहे वो कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे परफेक्ट हो, चाहे आपका इंडेफिनिट हो, विल के बाद कभी भी ना तो पास्ट फॉर्म आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगा, थर्ड फॉर्म नहीं आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। इसके बाद सिर्फ आना है तो वर्ब का बेस फॉर्म आएगा। बेस फॉर्म समझते हैं क्या होता है सर? बी हो गया वर्क का बेस, जैसे वर्क, तो वर्क जो है इसका बेस फॉर्म है। अभी आपने गो, वेंट, गॉन पढ़ते हैं। गो इज द बेस फॉर्म एंड वेंट इज द पास्ट फॉर्म और गॉन इज द पास्ट पार्टिसिपल, जिसको वर्ब की थर्ड फॉर्म बोलते हैं। तो यानी विल के बाद हमेशा आपको बेस फॉर्म आएगा किसी भी वर्ब का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में विल प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। आपको कंटिन्यूअस के लिए विल, अब यहां पे कंटिन्यूटी दिखाने के लिए आपका प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, अगर किसी चीज की क्रिया को अगर कंटिन्यूटी आपको दिखाना है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब का यूज होना जरूरी है। तो अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पढ़ा था ही इज गोइंग टू, यानी गोइंग वहां पे आ रहा था, ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट जा रहा है, वह मार्केट जा रहा था, इसके लिए क्या बोलेंगे? ही वॉज गोइंग टू द मार्केट, यानी वहां पे भी गोइंग यूज हुआ। अब फ्यूचर में भी कंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूअस टेंस है, भले वो परफेक्ट हो, भले ये कंटिन्यूअस हो, अगर कंटिन्यूटी आपको दिखाना है देन यू हैव टू यूज द प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन प्रेजेंट पास्ट, अब यहां पे क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल, मान लीजिए अगर वह घर जा रहा होगा, ऐसा अगर हमें कहना हो तो क्या बोलेंगे? ही विल गोइंग टू द मार्केट या ही विल गोइंग टू द होम? ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि विल के बाद बेस फॉर्म आना कंपलसरी है। तो इसके लिए आप विल प्लस बी लगा दीजिए, बी इज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फिर यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपकी समझने के लिए लिखते हैं, ओके, प्लस आपको ऑब्जेक्ट। पूरा लिख रहे हैं तो पूरा लिख दे रहे हैं, ठीक है, इट वुड बी इजी। ये सब्जेक्ट आपका है, सबसे पहले ऊपर वाला क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेकंड आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट दिखाने के लिए आपको बोला गया है हैज, हैव या हैड का यूज होता है हमेशा
परफेक्शन के लिए हैज हैव हैड का ही यूज होता है। हैज हैव हैड के बगैर कोई भी टेंस आपको परफेक्ट नहीं बन सकता, चाहे परफेक्ट हो या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो। परफेक्ट वर्ड मतलब जो परफेक्ट वर्ड है वो अपने साथ हैज हैव हैड लेके आएगा। तो अभी हम प्रेजेंट Yes. परफेक्ट की केवल बात कर रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव। Has अब आपको ये भी जानना होगा हैज हैव हैड एक ये ऐसे वर्ड्स हैं जिसके बाद हमेशा कोई भी कहीं पे भी हो हमेशा पास्ट पार्टिसिपल ही आएगा, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगा। इसके अलावा इसके बाद कोई मतलब इसके साथ जो वर्ब है इस मॉडल वर्ब ये हैज हैव इस हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर कोई दूसरा आपका मेन वर्ब आता है तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही आएगा। अब आपको परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आप यहाँ पे लिखेंगे, थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल लिख दें या थर्ड फॉर्म लिख दें। the third form. The third form. देखो बेटा एक चीज है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म ये मैं लिख रहा हूं, इट इज द रॉन्ग वे। ये बच्चे यही लर्न करते हैं और ये कभी भी फ्यूचर में मिलने वाला नहीं है। हमेशा जो सेकंड फॉर्म होता है उसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको ध्यान रखिए। थर्ड फॉर्म जो होता है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, जो आईएनजी फॉर्म होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये हमेशा जब आपकी आदत में बनी रहेगी तो इन फ्यूचर कई बार आपको अगर पूछ लिया गया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है तो कम से कम तुम बता तो सकते हो, आप बता तो सकते हैं। अगर ये आपसे पूछ लिया गया कि व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल तो आप कहेंगे कि पास्ट पार्टिसिपल, आप मान लीजिए डेफिनेशन नहीं बता पा रहे तो एटलीस्ट यू कैन एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल। तो कम से कम सामने वालों को पता रहेगा कि चलो अच्छा ठीक है बच्चा कुछ तो जानता है। फिलहाल मैंने लिख दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म में लिख दिया है प्लस ऑब्जेक्ट। लास्ट आपका सबसे पहला जो रूल है दैट इज द फ्यूचर इंडेफिनिट, फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फिर फ्यूचर परफेक्ट। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट में फ्यूचर के लिए विल या शैल आना चाहिए, सॉरी आई हैव नॉट रिटन हियर, ये गलत हो गया है, ये गलत है। There has. Yes. सब्जेक्ट will have, will plus have। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन द लास्ट वन जो आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा उसमें क्या होगा सब्जेक्ट प्लस फ्यूचर के लिए आपको विल यूज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि कंटिन्यूटी यहाँ पे शो करना है, यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है, तो हैज हैव नहीं यूज कर सकते। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे विल बी डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, विल के साथ आपका बेस फॉर्म आ गया। विल हैव बीन गोइंग, सॉरी विल आपको फ्यूचर परफेक्ट है, विल के साथ हैज या हैव आएगा ही परफेक्ट बनाने के लिए, लेकिन इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आना चाहिए और कंटिन्यूटी भी दिखाना है। तो क्या करेंगे बीन यूज, हैव के साथ बीन आपका थर्ड फॉर्म यूज कर लेंगे, बी का थर्ड फॉर्म, बी का पास्ट पार्टिसिपल बीन होता है, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द। अब ये होता है रूल्स, इसको मैं डिटेल में आपको अलग से टेंस की क्लास में पढ़ाते समय कई सारे प्रैक्टिसेस भी करा दूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा। Yes. ओके, तो दीज आर द विल मॉडल वर्ब है, उसको हम इन 4 डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। इन 4 अलग अलग तरह के फ्यूचर्स में बात किए जाने वाले एक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं। ओके Yes. यस सर। चलिए ठीक है, अभी हम आपकी बुक पे चलते हैं। तो विल कैन बी यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन द डिफरेंट वेज। उसी के एग्जाम्पल हैं आई विल हैव कंप्लीटेड, विल के बाद हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस कि इट इज अ फ्यूचर। कौन सा टेंस है ये? फ्यूचर इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। The future perfect. ध्यान देना है हैज हैव हैड कहीं पे भी दिख जाए, अगर वो रखने वाला मीनिंग के साथ नहीं आया है कि आई हैव पेन, तो आई हैव पेन नहीं आपका परफेक्ट है। हैव अगर आज हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है तो दैट मींस वो परफेक्ट है। किसका परफेक्ट है? इज एम आर है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर वाज वर्ब के साथ आया है तो ये पास्ट परफेक्ट तो है, लेकिन विल के साथ आया है तो ये क्या है?
फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। लेकिन अगर हैव बीन होता यहाँ पे, या हैज बीन होता, या हैड बीन होता, तो हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद आईएनजी फॉर्म होता, तो वो आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता। जैसे कि यहाँ पे हैव बीन लर्निंग, हैव बीन लर्निंग जो है वो आपका प्रेजेंट में भी आता है, फ्यूचर में भी आता है। लेकिन ये विल लगा है, इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन यहीं पे इफ आर होता तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता। क्लियर हो जाएगा? ऐसे में समझ पहचान ले जाएंगे। और सर लास्ट में सब कोई ईयर दिया रहता है। तो ये सारी चीजें रही टेंसेस की बातें। टेंसेस को मैं अलग से भी कवर करने की कोशिश करूंगा। There is one more thing to talk about your future. What already we have discussed in our grammar junction, that also we can use may and might. Other modal verb like may and might are also used to talk about the future. आप कहते हैं ना, maybe I would be going to the market in this evening. आज शाम को मैं मार्केट जा रहा हूं। लेकिन हो सकता है, मे भी मतलब हो सकता है, माइट जहां पे संभावना जताई जा रही हो, तो माइट भी यूज किया जा सकता है फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए बात करने के लिए। बट माइट के बाद क्या होता है? माइट आर ऑल्सो। अब यहां पे कैसे क्या किया जाता है? मे लेट्स से कि देयर इज सम ऑफ द एग्जांपल, गोइंग टू, अबाउट टू, और भी मे बी का भी एग्जांपल्स आपका आएगा, माइट बी का भी एग्जांपल्स आएगा, और विल का भी एग्जांपल्स आएगा। देन वी हैव टू डू द प्रैक्टिसेस थ्रू द सेंटेंसेस। तो जो आपको अलग से टॉपिक्स पढ़ाए गए थे ग्रामर जंक्शन में, ग्रामर स्टेशन में, आपको फ्यूचर में किन किन तरीके से आप बोल सकते हैं, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। हम लोग अब सेंटेंसेस एग्जांपल्स पे चलें। यस सर। ओके, फॉर द एग्जांपल, फॉर गोइंग टू का एग्जांपल आप लोग ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, फिर भी एक बार देखते हैं। वी आर गोइंग टू विजिट माई आंट इन द इवनिंग, यानी वी आर गोइंग टू द, दैट मीन्स कि इन फ्यूचर ये होने वाला है, हम मार्केट जाने, मतलब अपने आंट के यहाँ पे इस इवनिंग में विजिट करने वाले हैं। इट इज द प्लान, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड कि हाँ हम शाम को यहाँ पे जाएंगे, तो गोइंग टू हैज बीन यूज्ड हियर। एंड द अनदर वाज वी वर अबाउट टू वॉच ए मूवी, हम बस मूवी देखने ही वाले थे। अब यहाँ पे पास्ट में बोला गया है एक तरीके से, वी वर अबाउट टू वॉच ए मूवी, बस हम मूवी देखने ही वाले थे। बट लेकिन अगर आप देखने वाले हैं, फ्यूचर की बात किया जाए तो वी आर अबाउट टू वॉच ए मूवी, हम मूवी, मान लीजिए आप हॉल में बैठे हुए हैं, हॉल में क्या अपने घर पे ही बैठे हैं, आप टीवी ऑन कर दिए, जस्ट यू आर गोइंग टू स्टार्ट द मूवी। देन व्हाट यू, अगर किसी ने कॉल किया, देन व्हाट यू वुड बी टेलिंग, आप क्या बोलेंगे? आई एम गोइंग टू वॉच अ मूवी, आई एम अबाउट टू वॉच ए मूवी। तो गोइंग टू भी अबाउट टू दोनों आप बात कर सकते हैं, बट फ्यूचर के लिए अगर कोई गोइंग टू बात यूज कर रहा है या अबाउट टू यूज कर रहा है, तो आपको ये जानना होगा कि हाँ ये फ्यूचर में करने जा रहा है, इसका मतलब ये कर नहीं रहा है, वो करने जा रहा है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, Yes, sir. सो लेट अस रीड दिस पैसेज। ये एक पैराग्राफ है, एक पैसेज है। वी हैव टू रीड ऑल द सेंटेंसेस, और हर सेंटेंसेस को पढ़ने के बाद हम ये देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस हमें फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर प्लान के बारे में, या फ्यूचर में जो चीजें होने जा रही हो, फ्यूचर एक्शन के बारे में बता रहा है। उस एक्शन को हमें अंडरलाइन करना है। रीड द पैसेज एंड अंडरलाइन द पार्ट्स दैट शो फ्यूचर टाइम। So let me take the, yes. Now the Football World Cup is an international football event organized by FIFA every 4 years. क्या यहाँ पे फ्यूचर की बात की जा रही है? नो सर। No, sir. नो सर। बिल्कुल नहीं। द फीफा, यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है। क्या इंफॉर्मेशन है? द फुटबॉल वर्ल्ड कप, जो फुटबॉल का जो विश्व कप होता है, वर्ल्ड कप होता है, इट इज एन इंटरनेशनल फुटबॉल इवेंट। ये एक इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल का इवेंट होता है, समारोह होता है, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है फीफा के द्वारा। एवरी 4 years, हर 4 साल पे ये फीफा द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये कौन से टेंस में है फिलहाल, कोई बता सकता है? सर प्रेजेंट। प्रेजेंट। अब प्रेजेंट में है, बहुत अच्छी बात है। इट इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है, बात अलग है। अब एक्टिव पैसिव आप लोग बड़े होंगे, पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। The next sentence is, the next one is going to be held in 2000
2018, ध्यान देने की बात है, द नेक्स्ट वन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 2018। अभी आज 2021 शुरू हो चुका है, लेकिन जब ये बुक्स जिस कॉन्टेक्स्ट में ये बात किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 2018 की बातें कहा जा रहा है। आप 2018 को 2022 कर दो, ठीक है, हर 4 साल बाद होगा ना, तो 22 में होना चाहिए 18 के बाद। तो फ्यूचर की बातें यहाँ पे किया जा रहा है, भले ही 2018 बीत चुका है हम लोग के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, इज गोइंग टू बी Going. दैट मीन्स इट इज शो द फ्यूचर टाइम। द नेक्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन इन 2018 या 2022। इसको ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। शैल आई मूव अहेड? Yes, sir. By then, FIFA will have been conducting this tournament for 21 years. By then, FIFA will have been conducting. क्या ये फ्यूचर टाइम की बात नहीं कर रहा है या नहीं, ये बताइए मुझे। सर कर रहा है। कर रहा है। विल का यूज ही इसीलिए होता है कि हम फ्यूचर के बारे में बात करें। विल कभी भी पास्ट या प्रेजेंट के लिए नहीं यूज किया जाता। इज तो फिर इज गोइंग तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको दिख जाएगा, बट जो विल है, विल का आना, विल मॉडल वर्ब का आना ये शो करता है ये फ्यूचर ही है और कुछ भी नहीं है। तो दैट मीन्स कि विल हैव बीन कंडक्टिंग, ये इट इज ऑल्सो शोइंग द फ्यूचर टाइम। इट विल बी हेल्ड इन रसिया बिटवीन 14th जून एंड 15th जुलाई। क्या ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Sir will be. ये भी आपको शो कर रहा है। इट विल बी हेल्ड, ये रसिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा, हेल्ड होगा बिटवीन दिस डेट। दिस विल बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप हेल्ड इन द फॉर्मर सोवियत यूनियन। ये सबसे पहला वर्ल्ड कप होगा जो कि इस फॉर्मर सोवियत यूनियन संघ में होगा। क्या होगा? दिस विल बी द फर्स्ट, यानी ये अभी होने वाला है। तो क्या ये फ्यूचर टाइम की बातें कर रहा है या नहीं? सर कर रहा है। विल का आना, यस ऑब्वियसली, नो डाउट। विल तो ऐसा है कि आप नो नहीं करना है। कप हेल्ड इन द फॉर्मर, अच्छा ठीक है, हो गया। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट वर्ल्ड कप सिंस 2006 टू बी हेल्ड इन यूरोप। इट विल ऑल्सो, अभी हुआ नहीं है, ये भी होने ही वाला है। क्या? इट विल बी ऑल्सो द फर्स्ट वर्ल्ड कप सिंस 2006 टू बी हेल्ड इन यूरोप। ये भी शो कर रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. द टूर्नामेंट विल इन्वॉल्व, जो टूर्नामेंट है उसमें इन्वॉल्व होंगे कितने लोग? 32 टीम्स होंगे। द टूर्नामेंट विल इन्वॉल्व 32 टीम्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ वन ऑफ द होस्ट नेशन। यानी ये टूर्नामेंट अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। फ्यूचर की बातें कर रहा है, ये पास्ट या प्रेजेंट की बातें हो रही हैं। जो इसमें कितने टीम्स इन्वॉल्व होंगे, ये क्या दिखा रहा है? फ्यूचर की बातें हो रहा है या प्रेजेंट की बातें हो रहा है? सर फ्यूचर की। Sir future. बेटा ये फ्यूचर यहाँ पे भी है। जहां पे भी आपको फ्यूचर टाइम दिखे, यहाँ पे आपको क्या लिखा है? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दिखे, रीड द पैसेज को पढ़ना है, अंडरलाइन द पार्ट्स। ऐसे पार्ट्स को आपको अंडरलाइन करना है जो आपको फ्यूचर टाइम की तरफ इंडिकेट करें, फ्यूचर टाइम को शो करें। तो ये फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। ओके, Sir. द फाइनल इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द मॉस्को एट द, अब द फाइनल इज गोइंग टू टेक प्लेस इन द मॉस्को एट द दिस स्टेडियम। तो क्या यहाँ पे फ्यूचर शो हो रहा है या नहीं? फ्यूचर शो हो रहा है। फाइनल इज गोइंग टू So, rather is going. जो ये सेंटेंस है ये फ्यूचर में होने वाला है। और ये किससे, कौन शो कर रहा है, कौन इंडिकेट कर रहा है? इज गोइंग टू टेक प्लेस, is going to take place. So going to take place in Moscow at this stadium. Experts say that India might be able to qualify for the tournament this time. Expert क्या कहते हैं? इंडिया भी शायद क्वालिफाई कर जाए। तो क्या ये माइट शो कर रहा है फ्यूचर या नहीं? शो कर रहा है। might be also showing the future time. That means it is also the one of the
parts of this sentence that indicate, that show the future time of this sentence. Now the next question is, 3 minutes is remaining. The car company is going to launch या are going to launch या will be launch. आपको एक चीजें ध्यान देना पड़ेगा, मैं आपको हिंट बता दे रहा हूँ. Are going to. one thing I would like to clear, one more thing. ये will be है ना, आपको बताया गया है कि will के बाद हमेशा ही verb का बेस फॉर्म आएगा, ठीक है. Yes. अब will के साथ ये be ऑलरेडी यहाँ पे लगा है, इसका मतलब बेस फॉर्म ऑलरेडी लगा है. ये बेस फॉर्म जब स्पेशली अलग से पहले से कब लगाते हैं? आपका इंडेफिनिट में तो लगाते नहीं है, कंटिन्यूअस में लगाते हैं. Continuous में. क्योंकि बी लगाना, बी अपनी मर्जी से चिपकाने का मतलब यह है कि हम इसके बाद कोई दूसरा फॉर्म ऑफ द वर्ब्स यूज करने वाले हैं, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वर्ब की, या मतलब पास्ट पार्टिसिपल, या तो प्रेजेंट पार्टिसिपल. फिलहाल पास्ट पार्टिसिपल के लिए हम लोग हमेशा हैज या हैड के बाद यूज करते हैं, तो हैज हैड के बाद थर्ड फॉर्म आता है, तो वहां पे बी यूज करते हैं, बी नहीं. तो बेस फॉर्म हम यहाँ पे यूज किए हैं, तो बेस फॉर्म के बाद आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, और कोई जरूरी नहीं है कि बी के बाद आईएनजी फॉर्म ही आए. माय बेबी सिस्टर विल बी 3 years. कई बार होना को भी इंग्लिश, कई बार क्या होता है ना, आप किसी फ्यूचर की बातें में बात करें जहां पे आपको कोई एक्शन ही ना दिख रहा हो, जहां पे कोई वर्ब ही ना हो, वहां पे आप जब कोई एक्शन ही नहीं दिख रहा है, केवल आपका विल ही है, बेटा ध्यान देने की बातें हैं, क्योंकि अभी सेकंड सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा. माय बेबी सिस्टर, अभी यहां पे मैं लिख दे रहा हूं विल बी, तो विल बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज माय बेबी सिस्टर विल बी 3 years old दिस संडे. इस संडे मेरी जो बेबी सिस्टर है वो 3 साल की होने वाली है. निहारिका प्लीज म्यूट योरसेल्फ. माय बेबी सिस्टर विल बी 3 years old दिस संडे. अब इसके बाद आईएनजी फॉर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है. वर्ब हमेशा एक्शन ही नहीं, पोजीशन भी शो करता है, अवस्था भी शो करता है, स्टेट ऑफ द नाउन और प्रोनाउन भी शो करता है. किसी भी वर्ब का आप स्टेट भी शो करता है. तो वहां पे आप जब यहाँ पे कोई एक्शन हो ही नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे? विल के बाद किसके, कौन से वर्ब का बेस फॉर्म यूज करेंगे? कोई है ही नहीं जब, तो ऐसे में बी यूज करेंगे. माय बेबी सिस्टर विल बी 3 years old. द कार कंपनी इज गोइंग टू लॉन्च. शी विल बी होगा या शी इज गोइंग और प्लेइंग, गोइंग और प्लेइंग दोनों दो बार तो आईएनजी फॉर्म आएगा नहीं, इसका मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे विल बी होगा ना. Yes, sir. द गुप्तास, बेटा आपका सेशन क्लोज होने वाला है, यू ऑल नीड टू रिज्वाइन सो दैट मैं आज ये पूरा सेक्शन कंप्लीट कर सकूं और नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर शुरू कर सकें. आप सभी को दोबारा क्लास ज्वाइन करना है आज, ठीक है? 5 minutes के लिए आप लोग को ज्वाइन करना है, सो दैट वी कैन कंप्लीट इट. गुप्तास, देयर आर मेनी पर्सन, मोर देन 1 persons आर देयर, तो दैट मीन्स कि क्या होगा? इज गोइंग टू या आर गोइंग टू या विल बी शिफ्ट. Are going to. शिफ्ट आपका यहाँ पे ध्यान देने की बात है. विल बी इसलिए नहीं होगा क्योंकि